Guys, quick revision फटाक से. I know isotopes पता है सबको. Isobars. What is isobars, guys? Sir, they have the same atomic mass number but different proton number. Different atomic number, yeah. चलो. Isobars के बाद isotones. They have Same number of. same number of neutrons. Great. J.J. Thomson models spread out होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज अंदर एम्बेडेड होता है, बीट्स सीड्स के जैसे इलेक्ट्रॉन्स. ड्रॉबैक एक ही जगह पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है. रुदरफोर्ड gold for experiment alpha rays, that is helium 2 plus passed, and most of the rays passed out. So conclusion is There is a small nucleus. very small nucleus and very big atom is there in front of them. And कितना that- nucleus छोटा है, कितना atom बड़ा है, everything will be learn out in entrance part. And क्या बोलिए? Sir, an atom is Atom is empty. हाँ, the whole empty. hollow space is there, yes. And with solar panel, with solar system, उन्होंने बोला electron is a rotatory species. Electron rotates around the nucleus, right? Yes, sir. Now, drawback of Rutherford, electron will attract to the nucleus Yes. It will use energy because of less. Centrifugal force. Centripetal force. Yeah. Second drawback, it does not know about how many orbits, the electrons inside it and all. This all the answer is not given by Rutherford. Niels Bohr started study of first dual nature of light and electrons. So here the dual nature of species will be first is particle, second is wave. Now wavelength is nothing but the length of one wave. Has frequency number of waves passed in 1 second, denoted by nu. See the symbol. Frequency, guys, please remember it's number of Number of waves wave, passed per second. Waves per second. waves passed in 1 second. Great. B. The frequency is also given by 1 by t, where t is a time period, time taken by the one wave to pass. एक wave को time कितना लगा ऐसा. So here further velocity is it's a nu into lambda. That's a distance covered with respect to 1 second. Am I clear? Distance covered by the wave in 1 second, right? Yes, sir. Everyone, ये स्लाइड दिख रहा है सबको कि पहला वाला ही दिख रहा है? Sir, पहले वाले पहला वाला ही दिख रहा है ना? एक मिनट, मैं नया स्लाइड शेयर करता हूँ. ठीक है भाई, अभी दिख रहा है बराबर? ओके, चलो. क्या होता है इधर बेटा? What is wave number? Sir, the Number of waves in 1 centimeter part. Great, very good. Number of waves in 1 centimeter part. And उसकी shortcut, it can be easily determined by 1 upon lambda, right? Lambda. 1 upon wavelength, yes. So this is how the thing works. Wave number. After that, we have started with Planck's quantum theory. Simply, Planck says that object के अंदर energy increases with respect to increase in Frequency. frequency ज़्यादा है तो more waves comes, Energy. where individual waves carries how much energy? One packet of energy 6.16 into 10 raised to minus 34 joules. Joules. इतना एक wave का energy रहता है. And please guys,
प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट मत बोलो, इट्स जूल सेकंड, जूल सेकंड क्यों? उसके बाजू में फ्रीक्वेंसी वेव्स पर सेकंड सेकंड कट करने के लिए है वो, क्लियर? Yes, sir. नाउ Yes, sir. ये हमने पढ़ा कि बॉडी के अंदर एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है। नाउ गाइस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या, पहले हम लोग ने चार्जिंग किया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया इनटू द हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट। नाउ हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से वो अभी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इट डेवलप्स द वेरियस रेज फ्रॉम हायर शेल टू Lower Lower shell. shell. lower shell. The study of this rays is called as hydrogen spectrum. Am I clear? Yes, sir. Now, study of this rays, hydrogen spectrum study करने के लिए there are various scientists that we have seen. That first shell के ऊपर जो rays आ रहे हैं, that is studied by Mr. Lyman, and that's having UV frequency. UV, that is ultraviolet, right? Now, second shell के rays is given by Mr. Balmer, studied by Mr. Balmer. Second rays के wave studied by Mr. Balmer, that was having visible frequency, right? Where third is Paschen, fourth is Brackett, fifth is Pfund, sixth is Humphrey. They all are having third, fourth, fifth और sixth shell पे जो rays आ रहे हैं, that's having a infrared frequency. इतना clear है guys, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now, important part है here, जो भी सपोज सेकेंड शेल पे बाल मैंने चालू किया, इसके लिए सेकेंड शेल पे लिया, हायर शेल से रेज आ रहे हैं, वो रेज में और सेंटीमीटर में कितने वेव्स है, जो हायर शेल से रेज आ रहे हैं लोअर शेल पे, वो रेज में पर सेंटीमीटर कितने वेव्स है फाइंड आउट करने के लिए वी हैव फॉर्म दिस फॉर्मूला गाइस, दैट इज न्यू बार इक्वल्स टू गाइस व्हाट, 1 अपॉन लैम्बडा, दैट इज 109677। ये फिगर इज कॉल्ड एज रीडबर्ग कांस्टेंट। इसके मल्टीपल्स में रेस पाए गए हैं, सॉरी इसके मल्टीपल्स में वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पाए गए हैं इन अ पर्टिकुलर गिवन रे, where multiplied by 1 upon n2 square minus 1 upon n1 square, where this the initial number n2 that was what, the below यहाँ पे शेल आ रहे हैं, फाइन, और n1 मतलब जहां से शेल आ रहे हैं गाइस। एम आई क्लियर क्या? Okay Kashish, now it's fine Kashish, am I audible now properly? Sir, your voice is proper. अच्छा, Yes, sir. ओके बेटा। सो कशिश बेटा प्लीज लॉग आउट करके वापस लॉग इन कीजिए एक बार। कशिश, शायद कुछ नेटवर्क इश्यू होगा तो फटाक से रिजॉल्व हो जाएगा, लॉग इन कीजिए ना वापस। ओके ओके। सो इधर क्या पढ़ा हमने, मिथ, हाँ बेटा, दैट इज सब नीचे वाला ग्रुप माइनस ऊपर वाला सर, यस, नीचे वाला पहले माइनस ऊपर वाला, माइनस, स्क्वायर करना भूलना नहीं है। यस सर, ग्रेट। सो इधर हम लोग एग्जाम्पल भी लिया कि थर्ड शेल से सेकंड शेल पे रे आ रहा है, थर्ड शेल से सेकंड शेल पे रे आ रहा है अगर, सो हाँ सर, वो रे में पर सेंटीमीटर में कितने वेव्स होंगे, दैट इज 109677 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, पहले नीचे वाला लिखना है 1 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, राइट एवरीवन? ठीक है, नाइस। अभी फटाक से अपना ये रिवीजन होने के बाद लेट्स स्टार्ट फर्दर गाइस। ओके अच्छा,
So guys, here हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ड्यूअल नेचर दोनों स्टडी करने के बाद मिस्टर नील बोर has given various studies, has given various postulates. नील बोर अमेजिंग साइंटिस्ट, उसने सब प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया. He says that न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट्स बने हुए हैं. न्यूक्लियस के आजू बाजू सर्कुलर पाथ्स में क्या बने हुए गाइस? Orbits. ऑर्बिट्स. हियर हम लोग ये ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3 ऐसा देता है, बट उसने KLM. बराबर 7 ऑर्बिट्स उसने बनाए थे वो टाइम यस पे, बट नंबर के बदले उसने लेटर दिए थे, जो अभी हम लोग ने चेंज करके नंबर कर दिया है. ठीक है, ये सुनो. सर्कुलर पाथ्स, ऑर्बिट्स प्रेजेंट around nucleus, right? So guys, circular path में orbit है. So moreover, he further stated that this is electron, this is huge energy gap. So इधर उसको if electron wants to jump to its upper shell, then क्या करना पड़ेगा? Charge. अभी हमने चार्जिंग में पढ़ा. वेरी गुड. एनर्जी क्या किया स्वाति जी? हम लोग ने एनर्जी वो लोग को दिया, सो वो लोग एक्साइट होके नेक्स्ट सेल में मूव करेंगे. यस. सो ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा ऊपर जाने के लिए, राइट? क्योंकि हायर एनर्जी है ना उधर. हाँ सर. सो इधर क्या लिखूं मैं? नील बोर ने क्या बोला? इफ इलेक्ट्रॉन वांट्स टू जंप टू इट्स अपर शेल, देन It needs to observe energy. yes, it has to absorb energy. Yes. Similarly, हम लोग ने डिस्चार्जिंग में पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा? कि इलेक्ट्रॉन को अपर शेल से नीचे आना है तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी. यस, और वो इन टर्म्स ऑफ रेज, राइट? इन टर्म्स ऑफ रेज रिलीज करते हैं, राइट? याद आया? यस सर. सो electron wants to jump to its what? Beta guys, please help me out. To lower shell, Lower shell. then it has to Release energy. release energy. Great. Further, भाई साहब ने बोला ये जो एनर्जी दिख रही है ना, एवरीवन प्लीज इन्वॉल्व. ये Yes, फर्स्ट sir. शेल, ये फर्स्ट शेल की एनर्जी, ये सेकेंड शेल की एनर्जी, फिर ये बेटा थर्ड शेल की एनर्जी, राइट? Yes, sir. These energies are fixed. क्या बोला उसने?
every shell has a, क्या बोला, Fixed energy. fixed energy. तो energy in a given shell, समझो n की वैल्यू 1 रखोगे तो एनर्जी इन फर्स्ट शेल ऐसे. अभी एकदम अमेजिंग बात है, ध्यान देना. हियर ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में समझाता हूं मैं, बट आपको ये तो समझेगा क्या, जूल तो यूनिट पता है आपको, राइट एवरीवन? यस और नो? जूल कितनी एनर्जी है? ओके, तो हियर चलो क्वेश्चन. Sir, can you go back? I'm coming. Just a sec. In a hydrogen atom, Amaya, in a hydrogen atom, tell me the energy in third shell. Sir, the energy in the third shell will be minus 13.595 into z square, which is 1 square, upon n square, which is 3 square electronic volts. Great. क्या बोला अमय ने? ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में हम लोग समझते हैं क्या है वो, बट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 सर. और इधर कौन सा शेल बोला है? एन इज अ शेल बेटा. थर्ड शेल. थर्ड शेल सर. बराबर. जेड मतलब क्या बेटा रामशा? जेड मतलब Atomic number. Great. So I have written here atomic number as well as the shell. So this is 3 का square. Very good, Amaya also. Here Amaya beta, abhi 3 का square is what? Sir, 9. ठीक है ना, 9 का double, you know that. The important part is, चलो पहले इधर see, थोड़ा जूल में लिखना प्रॉब्लमेटिक है. क्यों? ये देखो -18 वगैरह भी लिखना पड़ता है बार बार. इधर कन्वर्जन कम्स, everyone note down this conversion. ठीक है, सी 1 जूल इक्वल्स टू here 1 electronic volt equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. मतलब 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कितना छोटा जूल में वैल्यू है. कैन यू सी? सर एक मिनट, जैसे कि 1 ग्राम इक्वल्स टू किलोग्राम, दैट इज 10 रेज टू माइनस 3 किलोग्राम. 1 ग्राम मतलब क्या अब्दुल्ला जी? 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 रेज टू माइनस 3 किलोग्राम. तो 1 ग्राम बहुत छोटा यूनिट है इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, राइट? किलोग्राम बड़ा है. यू कैन, इतना समझा पहले क्या? 1 ग्राम बोलो, छोटा है और किलोग्राम बहुत बड़ा है. किलोग्राम बहुत बड़ा है, 1 ग्राम छोटा है. बराबर ना अमित? 1 ग्राम हाँ छोटा है और किलोग्राम बड़ा है. और 1 किलोग्राम बड़ा है.
वैसे ही यह क्या छोटा है क्या बड़ा है? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बहुत 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 छोटा है। Am I clear? Yes, sir. या सो इधर हम लोग को जूल में बोलना है ना, बहुत डिफिकल्ट पड़ता है हमारा। सो हम लोग ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू द इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कैलकुलेशन करना इजी पड़ता है बिकॉज ये जो 10⁻18 ये सब फैक्टर्स है सब चले गए। Am I clear now, guys? Everyone? Yes, sir. Okay. So here, Yes, sir. great. Z square मतलब Z is nothing but your Atomic number. atomic number and third shell 3 square. तो क्या आया इधर बेटा एवरीवन? 9। क्या मिला इन टर्म्स ऑफ जूल? Am I clear? नहीं Yes, समझा? sir. क्लियर है इतना बेटा? Yes or no? Yes, sir. बेटा क्या हुआ ये? Oh my God, मैंने I'll try something. सर एक बार पोस्टुलेट्स बताओ ना। हाँ मैं एक मिनट बताता हूँ। ठीक, नील बॉर ने क्या बोला बेटा कि सर खाली nucleus- स्लाइड चाहिए। हाँ देखो ना स्लाइड बता रहा हूँ और थोड़ा बोल भी देता हूँ कि न्यूक्लियस के आजू बाजू में सर्कुलेटेड पाथ्स है जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। देयर आर 7 सर्कुलेटेड पाथ्स के एल एम एंड ओपी क्यू। ठीक है, अभी उसने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना है तो बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब Energy. करना पड़ेगा, बराबर? तो ये सब पॉसिबल है जब भी नीचे मोमबत्ती वगैरह दिया तो ही पॉसिबल है ऊपर एक्साइड हो ना, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। अपने ही वो पाथ में घूमेंगे अदरवाइज। सिमिलरली ऊपर से नीचे आना है उसको तो एनर्जी रिलीज कर। रिलीज करनी पड़ेगी। फिर उसने बहुत जबरदस्त बात बोल दी कि हर एक सर्कुलेटेड पाथ में फिक्स्ड एनर्जी है। क्या बोल दी बात? हर एक, बोलो ना, हर एक सर्कुलेटेड सर्कुलेटेड पाथ में पाथ में एनर्जी। एनर्जी फिक्स्ड है। Fixed energy है। ठीक, मैं क्या करता हूँ इसमें न्यू स्लाइड बना देता हूँ तो सेकंड और थर्ड कंबाइन हो जाएगा ये। ठीक है, चलेगा ना? दैट विल बी मोर परफेक्ट यार। एक चैप्टर ही पूरा एक साथ आ जाएगा। एक ही स्लाइड में कंटिन्यू हो रहा है सेकंड वाली थर्ड वाली। समझा क्या हुआ? नहीं समझ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो थर्ड वाली स्लाइड थी ना, हेलो? यस सर, समझा सर कब रहे। अच्छा, Yes, sir. ये उड़ कैसे गया वापस? सर ये क्वेश्चन भी एक बार समझा दो ना। क्या समझा दो? समझ जाओ, हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन था ना। हाँ हाँ वो समझा, एक मिनट। ओके चल, ठीक। अब इधर पहले उसने क्या बोला नील बॉर ने कि भाई हर एक शेल की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दे दिया। मैं बहुत रिसर्च के बाद दिया होगा ये फॉर्मूला उसने।
और इसका बहुत सारा पार्ट हम लोग एंट्रेंस में भी पढ़ेंगे कि फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ, क्या क्या चीज सोची उसके पीछे उसने, राइट। और क्या फॉर्मूला दिया उसने अब्दुल्ला जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, क्या दिया, -13.595 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, राइट। और यस सर। इन टर्म्स ऑफ जूल्स में, जूल्स और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट दोनों एनर्जी के यूनिट है बेटा, तो आई कैन इजीली कन्वर्ट देम। एक कन्वर्जन मैंने इधर सिखाया, देखो क्या कन्वर्जन सिखाया बेटा, कि 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इक्वल्स टू, हाँ 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इक्वल्स टू, बोलिए 1.6 into 10 to -9 जूल। -19 यस सर। ठीक है। तो इतना छोटा, यू कैन से दैट एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और जूल इज ऐसा ही यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। यस सर। सर ये जो Z है वो क्या है इसका? हाँ, Z जो है वो है एटॉमिक नंबर, जो अपने हाँ शुरुआत में ही मैंने बताया था, ये देखो फर्स्ट स्लाइड में, क्या Z क्या है देखो, X क्या है एटॉमिक देखो, नंबर। A क्या है देखो, A इज अ वजन, A कभी भी लिखा होगा उसका मतलब क्या, वेट। वजन। Z मतलब बेटा एटॉमिक एटॉमिक नंबर। नंबर, X मतलब एलिमेंट, और कभी भी याद रखो ऊपर के नंबर माइनस नीचे के नंबर विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वेट, मास्का, वेरी गुड। तो भाई अभी तक दो बातें बोल दी है नील बोर भाई साहब ने, क्या खतरनाक है नील बोर भाई साहब, क्या बोले उन्होंने, भाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे जंप करना है तो भाई एनर्जी एब्सॉर्ब या तो रिलीज करनी पड़ेगी, फिर क्या बोले, हर एक क्या और की फिक्स्ड एनर्जी रहती फिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। तो फिर उसने है ना वो रुदरफोर्ड को जवाब दिया वो टाइम पर, रुदरफोर्ड बोल रहा था ना, क्या क्या बोल रहा था रुदरफोर्ड, कोई भी तो वही तो बोलो, सॉरी प्लैंक्स 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 ने मिस्टेक निकाली थी ना रुदरफोर्ड में, यस सर। क्या निकाली थी मिस्टेक, एनर्जी तो लॉस ऑफ बहुत कम टाइम तक रहता है वो इलेक्ट्रॉन उससे दूर, न्यूक्लियस से। 10⁻⁻, कुछ सेकंड्स में मर्ज हो जाता है ना। मर्ज हो जाता है, बट क्यों, वो बोला था दैट इज, सो वो एनर्जी घूमते घूमते उसकी एनर्जी कम हो जाती है और हमारे हाँ न्यूक्लियस डिक्रीज उसको होते अट्रैक्ट कर जाते लेता हैं। है। कौन सा फोर्स कम हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल हाँ, फोर्स। सर सेंट्रीपिटल फोर्स, यस यस। और सर तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी नील बोर ने क्या बोला कि ये बॉडी, ये जो इलेक्ट्रॉन कहां पे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां पे घूम रहा है, बोलो, ये जो पर्टिकुलर शेल में घूम रहा है, क्या, बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन revolves in a particular shell. particular shell पर्टिकुलर शेल और ऑर्बिट। and particular shells Orbit. energy remains constant, right? क्या यस बेटा, पर्टिकुलर शेल की एनर्जी सर कांस्टेंट कांस्टेंट। रहती है, बात समझ में आई। हाँ सर। अभी सपोज एक रूम है, ठीक है, वो रूम के अंदर एनर्जी कांस्टेंट है, और वो रूम के अंदर मैं बंद हूं, क्या मीत मीत जी, रूम सर रूम में होगा, और मैं सर रूम में रूम हूँ, रूम के अंदर एनर्जी क्या है, कांस्टेंट एनर्जी है, है, कांस्टेंट है सर, और आप बराबर है। उसमें बंद हो गए हो। तो रूम की एनर्जी अगर चेंज नहीं हो रही है तो अंदर इनफैक्ट मैं हूं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, हर एक की एनर्जी वही रहेगी। यस सर। अगर मैं धूप में जाऊं तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी, अगर वो रूम में मैं एसी चालू करूं
तो ठंडी की वजह से मेरी एनर्जी कम होगी। बट Yes, अगर वो रूम में क्या, अगर वो रूम के अंदर ना कोई एनर्जी आ रही है ना कोई एनर्जी ना बाहर जा रही कोई है, डिस्चार्ज ऑफ वो एनर्जी, एक तो फिक्स सर अमाउंट ऑफ वैसे ही एनर्जी रिमेन। है, ठीक है, वो एक क्या है, फिक्स्ड सब अमाउंट में न्यूक्लियर एनर्जी है, ब्रीथ। और अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी में कोई भी रहेगा तो उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, Constant. बात समझ में आ रही है सबको? यस सर, समझा, थैंक यू सर। सो गाइस, क्या मैं मेरे को हेल्प करो इधर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ पर्टिकुलर शेल एंड पर्टिकुलर शेल्स एनर्जी रिमेन्स Energy remains कांस्टेंट, कांस्टेंट। hence electrons energy also remains constant। बराबर है? ओए, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोशिश करना, देख जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं नॉलेज के लिए। ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, ओए क्या इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा? ओए बोलो जल्दी। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, एनर्जी क्या की उसने? lost की। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी है उसने जो लॉस्ट की वो गेन कर लेगा फटाक से। मतलब दोनों काम चालू है इलेक्ट्रॉन का, क्या, एनर्जी लॉस्ट करना और ये रूम में से एनर्जी एब्जॉर्ब करना। ये रूम में एनर्जी कम हुई, ऊपर से आ जाएगी भाई, उसमें कम हुई और ऊपर से आ जाएगी भाई, और कम हुई बाहर सराउंडिंग से आ जाएगी भाई। ये जो सराउंडिंग को एनर्जी जा रही है, इन शॉर्ट इधर से तो आ रही है वापस। क्या बोला आरती मैंने? इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, हाँ, Yes sir. तो जो एनर्जी लॉस्ट कर Energy रहा है lost करेगा, तो उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, gain भी कर रहा है। पर्टिकुलर Gain. रूम में जो पर्टिकुलर शेल में फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी है उससे वो एनर्जी गेन भी कर रहा है भाई। जितना लॉस्ट कर रहा है उतना, Gain कर रहा है। और जो शेल के अंदर एनर्जी जो कम होते रहती है वो ऊपर से आते रहती है हायर शेल से। Yes हायर sir. शेल में एनर्जी ज्यादा है और वो हायर शेल वाला बाहर सराउंडिंग से फुल ऑन ले रहा है एनर्जी। सो भाई किसी को भी, किसी की भी एनर्जी कम हुई, एनर्जी सबकी क्या रही? Sir, constant. Constant. तो इलेक्ट्रॉन Constant. की एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स का सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, रिमेन्स कांस्टेंट। हेंस वो न्यूक्लियस से ऑलवेज एक पर्टिकुलर दूरी बनाए रखता है। हमें क्लियर? एक जबरदस्त जवाब दिया प्लैंक को उस टाइम पे मिस्टर नील बोर ने। हमें क्लियर? आफ्टर ह्यूज रिसर्च। मैं क्लियर गाइस है? यस सुनो। Yes sir. सो यस अभी तक क्या क्या बोला नील बोर ने, भाई साहब बोलो। नील बोर ने अभी तक क्या बोला? Sir, भाई इलेक्ट्रॉन को sir, न्यूक्लियस के आजू बाजू सर्कुलेटेड पाथ्स है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करना है तो, increases its energy, नीचे जाना है तो, decreases its energy. इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर शेल के अंदर जी एनर्जी भी फिक्स कर दी है। ये दोनों में से एंट्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट वाला ज्यादा यूज होगा फॉर्मूला और जूल वाला कम होगा, बट दोनों याद रखना है। नाउ गाइस, शेल की एनर्जी कैसे निकालते एक एग्जांपल लेके बताया मैंने। फिर आगे क्या जबरदस्त जवाब। Electron revolves in a particular shell. हाँ, So, पर्टिकुलर शेल की एनर्जी, sir, it remains constant. पर्टिकुलर शेल की एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपिटल फोर्स रिमेन्स Centripetal कांस्टेंट। force also remains constant. हेंस वो न्यूक्लियस से एक मेंटेन दूरी कर सकता है, अट्रैक्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाट गिवन बाय नील बोर। और नील बोर ने एनर्जी भी बता दी थी शेल की, इसके लिए वो टाइम पे सब लोग ने नील बोर पे परफेक्ट भरोसा किया। एंड अमेजिंग वर्क। स्टिल नील बोर कंटिन्यूज विद इट्स ह्यूज कंक्लूजन्स। उन्होंने ये फर्स्ट ऑर्बिट
हर एक ऑर्बिट का रेडियस बता दिया। ओ माय गॉड, क्या फाइंड आउट किया उसने गाइस? बोलो। Radius. The radius of each orbit. रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्या लिखा? He comes up with, बोलो क्या? Sir, the radius of each Radius orbit. of orbit. चलो अब्दुल्ला जी, क्वेश्चन फाइंड आउट in a hydrogen like species, in a hydrogen, क्या फाइंड आउट करना है अब्दुल्ला जी? द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। गाइस, कौन मुझे हेल्प करेगा? लेट्स Answer Call. almost correct. एक मिनट में, मुझे धन्यंदा जी हेल्प कीजिए। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट is equals to 52.9 upon 1/1 picometer. वाई एन मतलब फर्स्ट शेल, Yes sir, उसलिए 1 और square upon हाइड्रोजन 1 इसके लिए 1, राइट? 1. Yes sir. ग्रेट। धन्यंता जी, सेकेंड शेल का रेडियस मतलब ये, एक मिनट, ये रेडियस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस उसने दे दिया। कितना Yes, sir. अमेजिंग वर्क किया उसने, राइट? Yes sir. ग्रेट, गो अहेड। Sir, 2 square upon 1. दैट इज 52.9 into 4, राइट? Yes sir. Picometer. वो टाइम पे हमें धन्यंदा जी ये 52.4 into 4 दिस मच सेकेंड शेल का डिस्टेंस मिल गया। Yes. थर्ड गो अहेड। 52.9 into 9 into 3 square upon that 1. is 9. 9, right? So Yes sir. guys, everyone getting it or not? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So third shell का भी रेडियस, कैन यू सी एवरीवन? फॉर्मूला भूलना मत है, फॉर्मूला याद करके ना एंट्रेंस में थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा मैं फटफट। तो गोइंग अहेड गाइस, चलो इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। अमेजिंग वर्क बाय नील बॉर, ठीक है? रेडियस भी फाइंड आउट करके दे दिया। नेक्स्ट अमेजिंग वर्क बाय नील बॉर, he also found out angular momentum of an electron। guys, मोमेंटम तो आपको पता है, कोई भी पार्टिकल ऐसा सीधा सीधा मूव करता है ना, तो उसका वो पार्टिकल का Sir, linear momentum. हाँ, Sir, linear momentum. लीनियर मोमेंटम, वेरी गुड। लीनियर, सीधा सीधा जा रहा है, मास इनटू वेलोसिटी। एम आई क्लियर? बट इलेक्ट्रॉन क्या सीधा सीधा जाता है क्या? Waveform. No, sir, circular. बराबर है, वो Circular. सर्कुलर पाथ में जाता है, ऐसे ऐसे। तो इसके लिए इसका Circular मोमेंट, path में sir. हाँ, इसके मोमेंट को नॉट लीनियर मोमेंटम, इसके मोमेंटम को क्या बोलते हैं? Angular momentum. ठीक है भी, वो वेरी सिंपल, मास इनटू वेलोसिटी तो लेना ही पड़ेगा, बट उसके साथ कौन सा रेडियस फॉलो कर रहा है वो भी लेना पड़ेगा।
एंगुलर मोमेंटम के लिए बोलो भाई क्या? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ये तीनों दिन करने पे एंगुलर मोमेंटम मिलता है। तो क्या चीज एक्स्ट्रा आ जाती है हमें एंगुलर मोमेंटम में? मास और वेलोसिटी के साथ रेडियस, राइट? रेडियस क्यों लिया Radius. भाई? कौन से डिस्टेंस न्यूक्लियस से कौन से डिस्टेंस मेंटेन करके वो घूम रहा है, बराबर? दैट डिस्टेंस is also very much important while finding out the what angular momentum. Everyone, Bhagyashri, Aarti, Zil, am I clear? क्या क्या Yes, sir. नॉर्मल लीनियर मोमेंटम में क्या होता है? Mass into Mass velocity. into Mass into velocity आता है. velocity, right? But To velocity. एंगुलर मोमेंटम में न्यूक्लियस से Radius भी आ जाता है. रेडियस भी लेना पड़ता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फिक्स्ड है इलेक्ट्रॉन का। we learn इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ऑल्सो इन एंट्रेंस पार्ट, बट फॉर द एटम ये दोनों चीज फिक्स्ड है, इतना बैठ रहा दिमाग में पहले। अभी ये रेडियस जो है वो जैसे शेल चेंज होगा कैसे, हाँ Increase होते जाएगा. हाँ, रेडियस चेंज होते जाएगा, राइट? और उसका Yes. एंगुलर मोमेंटम चेंज होते जाएगा। Yes. रेडियस बढ़ते जाएगा, एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होते जाएगा। तो बार बार आपको इधर रेडियस, वेलोसिटी ये सब रख के आंसर निकालना पड़ रहा था। तो वो टाइम पे एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने का एक शॉर्टकट निकाला नील बोर ने। क्या वो टाइम पे क्या निकाला नील बोर ने भाई? Shortcut. क्या, कौन सा शॉर्टकट? दैट इज टू फाइंड आउट दी एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने का शॉर्टकट निकाला गाइस। एम आई क्लियर? यस और नो? सो दैट शॉर्टकट इज, एवरीवन क्या शॉर्टकट निकाला गाइस एवरीवन? NH by 2 upon pi. 2 pi, where this is continuously constant, this is constant, and n anyone n क्या है? Shell number. सॉरी सर, पहले मेरा डिस्कनेक्ट हो Number of गया। shell. No problem with that. So this is n is a shell number, right? आगे जाके उसको इस स्टाइल में बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो भाई ये एक अमेजिंग शॉर्टकट निकालने के लिए भी वो टाइम पे बहुत बहुत नील बोर का अप्रिशिएशन हुआ गाइस। जनरली सब लोग कैसे निकालते थे एंगुलर मोमेंटम? MVR फाइंड आउट करके वो टाइम पे एंगुलर मोमेंटम निकालते थे इलेक्ट्रॉन का। बट इसने एक नया डायरेक्शन दिया। क्यों मेहनत करना इतना, है ना ये शॉर्टकट? एंगुलर मोमेंटम कौन सा? फर्स्ट शेल का निकालना है। हाँ, तो n की वैल्यू क्या लिया? 1, जस्ट h अपॉन 2 पाई का कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। यस और नो? सो एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने का he comes up with the guys what new formula, right? No formula. इधर H is Planck's constant, ना? yes Okay, sir. Thank you. yes, I believe sir. Here H is guys Planck's constant. What's the value of it, guys? Have you remembered? What's the value of it, guys? Anyone? Planck's constant का value? 6.126 into 10 raised to minus 34. Wow. 6.126 into 10 raised to minus 34 unit, beta.
Joule second. Joule second. Great. So guys, very important. That's angular momentum. That is MVR. MVR बहुत longer हो रहा था guys. So shortcut guys, वो time पे amazing work done by Neil Bohr. And last एक amazing work जो इतना काम का नहीं है बट ठीक है, वो हम लोग को समझना चाहिए क्योंकि वो टाइम पे ये फाइनल वर्क करने के लिए उसको नोबेल प्राइज दे दिया था फिर, राइट? तो समझना ही चाहिए। वो बाल्मेर ने कोई फॉर्मूला निकाला था क्या? क्या था जरा प्लीज टेल मी। Rydberg's हाँ सर, constant. पर सेंटीमीटर की वेव निकालने का फॉर्मूला था, दैट इज 1 upon wavelength. क्या था? एक कांस्टेंट वैल्यू पर सेंटीमीटर के वेव्स फ्रॉम द हायर शेल टू लोअर शेल। अभी भी जस्ट रिवाइज किया था, प्लीज गाइस रिमेंबर 109677 मल्टीप्लाई बाय 1 upon n square n1 लोअर square शेल। लोअर शेल देखो ना, मैं इधर एल लिख दिया, लोअर शेल का नंबर लिखो इधर, लोअर शेल का नंबर का स्क्वायर minus upper shell का square. अपर हायर। ठीक है, चलेगा, टेंशन ही खत्म। तो भाई ये नंबर कैसे आया, उसका फॉर्मूला डिराइव्ड किया। नहीं समझा? हाँ समझा सर। क्या अमेजिंग काम किया, शॉर्टकट में समझा? यस सर, उसने वो नंबर कैसे निकाला? वो नंबर गाइस कैसे निकाला, वो उसका फॉर्मूला, ये लोग ने तो कैलकुलेट करके नंबर निकाला था भाई। ये लोग का काम में क्या था, ये लोग ने मैकेनिकल वर्क किया था, बाल्मेर वगैरह सब लोग का क्वेश्चन था कि भाई यही नंबर क्यों आया, व्हाट्स द फॉर्मूला बिहाइंड इट। मैं क्लियर? सो उसने फॉर्मूला एकदम सिंपल तरीके से निकाला, बहुत सारे जन का थियोरी मर्ज करके। ठीक है, चलो, तो एक तो खुद का थियोरी पहले उसने इन्वॉल्व किया। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू शेल? सर दिस इज लोअर शेल एंड दिस इज हायर शेल। ये एनर्जी डिफरेंस ढूंढना है। सो अमय, जस्ट अ सेक, एनर्जी डिफरेंस, कैन आई से दैट अमय हियर द एनर्जी ऑफ हायर शेल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर शेल? यस सर। ग्रेट। तो अभी एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जूल्स याद है किसी को? ये हायर शेल में कितनी एनर्जी होगी? एनर्जी इन हायर शेल, एनर्जी इन लोअर शेल, एनर्जी डिफरेंस। श्रावणी, मैं क्या कर रहा हूं समझ रहा है मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा? गार्गी बेटा, कशिश, निधि, पूर्वा जी, समझ रहा है कुछ? नील बॉर लास्ट क्या करने जा रहा है? लास्ट काम है, क्या करने जा रहे हैं नील बॉर? एनीवन? बोलिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। Formula derived. किसका फॉर्मूला डिराइव? बाल्मर्स फॉर्मूला। वो बाल्मेर में कांस्टेंट वैल्यू कैसा आया, वो फॉर्मूला, राइट, जो कल बात Right, कर sir. रहे थे अपन। तो भाई वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए उसने क्या दिमाग में लिया? पहले खुद का थियरी, दैट इज क्या फाइंड आउट करने जा रहा है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हायर एंड Two लोअर। shells. Higher shell and lower shell. कोई भी दो शेल के बीच में, हायर शेल और लोअर शेल के बीच में एनर्जी गैप कितना है वो फाइंड आउट करने जा रहा है बेचारा, राइट? सो गाइस वेरी गुड, रुशिता, भाग्यश्री, कम ऑन। तो इधर हायर शेल में कितना एनर्जी होगा? अभी एनर्जी का फॉर्मूला था ना, क्या था इन टर्म्स ऑफ जूल्स? अमया? Minus 2.18 into 10 raised to minus 18 joules. नहीं, आगे क्या था? Z square upon n square. वेरी गुड। अभी बेटा ये हायर है, हायर शेल है, जो भी शेल का नंबर इधर लिखूंगा मैं, राइट? आगे ना बोलो,
Yes, sir. Similarly, here, one more time. Yes, sir. क्या? Z square upon lower shell का square, right? हाँ, लोअर का स्क्वायर हाँ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये प्लस वाला टर्म को मैं आगे लिखूं चलेगा? प्लस वाला टर्म यस सर। और ये माइनस वाला टर्म ऐसे, तो सर क्या हो जाएगा? हाँ हाँ बोलिए। सर ये माइनस क्यों आया एनर्जी इन लोअर वाला? एक मिनट देखो अब्दुल्ला जी, एनर्जी गैप ढूंढ रहे हैं ना बेटा, ये एनर्जी गैप ढूंढ यस रहे सर। हैं। तो ये हायर एनर्जी में ज्यादा एनर्जी होगी, हाँ। ये लोअर एनर्जी का हम्म, गैप कब मिलेगा? हायर एनर्जी में सपोज बेटा 5 किलो जूल है, इसमें 2 किलो जूल है, तो ये गैप कितना हुआ? 3 किलो जूल। तो 5 - 2 करोगे ना, नहीं तो सर, माइनस ये लोअर लोअर एनर्जी है ना, उसका नेगेटिव एक वैल्यू मिनट ये कैसा समझ। आया? हाँ ये तो समझा। हाँ, अब ये एनर्जी का वैल्यू है, एनर्जी का फॉर्मूला उसने डिराइव किया है, हम्म, बात समझे आप? हाँ आप क्या पूछ रहे हैं? सर, इसका नेगेटिव कैसा आया लोअर का? लोअर एनर्जी थी ना जिसे अपन माइनस किया है, माइनस माइनस प्लस हुआ है ना। हाँ मैं समझा आपकी बात। मैं क्या बोला, ये एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया मैंने बेटा, ये एनर्जी का फॉर्मूला है ना, माइनस साइन उसमें देखिए, देखिए फॉर्मूला, एनर्जी के फॉर्मूला में है ना माइनस साइन बेटा। सॉरी सर, वो मैं नोट करना भूल गया था, माइनस साइन वो रह गया था। अब भी समझा? यस सर, समझा। हाँ, तो इधर बेटा ये अभी क्लियर हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर क्या लिखो, हेल्प करो गाइस प्लीज, क्या लिखो इधर पहले? जेड स्क्वायर अपॉन लोअर शेल का स्क्वायर, बोलो ना। Sir, minus z square upon higher shell का square. हायर, so finally can I take here something common? Sir, 2.18 into 10 raised to minus 19 z square. बराबर है, 1 अपॉन बराबर एवरीवन, ये एक समझा? हाँ ना, पर टाइप करो उधर प्लीज, अदरवाइज आई टेक वंस मोर। एनर्जी गैप उसने पहले फाइंड आउट करना चालू किया। ओके ओके, प्लीज गाइस एवरीवन इन्वॉल्व, जो भी है दिमाग में गया है तो हाँ बोल लेगा, नहीं गया है तो ना बोल लेगा। 2 बार सर मेहनत करेंगे, 2 रोटी ज्यादा खाएंगे, टेंशन की कोई बात है नहीं, सिंपल सी बात है भाई। क्लियर एवरीवन? सो भाई क्या, एवरीवन जल्दी बोलो फटफट। एनर्जी गैप पहले ढूंढना चालू किया, एनर्जी गैप इज नथिंग बट हायर एनर्जी का एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी का एनर्जी, हायर एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, समझा? और फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है, फिर सिंपल मैथ्स फॉलो किया है, प्लस आगे माइनस पीछे, कॉमन पार्ट बाहर ले लिया मैंने। गाइस इधर तक क्लियर है आई होप? एक मिनट चैट बॉक्स देख लेता हूँ वापस। ओके चलो, चमका सर मेघ जी चमक रहे हो, क्या बात है, बहुत। चलो तो यार, चलो भाई आगे बढ़ते गाइस। बच्चे बच्चे को पता है C इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा, ऑलरेडी जो हमने डिराइव किया इधर लिख रहा हूं मैं। डिराइव किया
बोलो भाई, लोअर का स्क्वायर माइनस हायर का स्क्वायर, ये ऑलरेडी डिराइव किया है। इधर मुझे c इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा याद है कि नहीं? Yes, sir. Previously did. That is c is nothing but a velocity of light, velocity. Mu क्या है? Frequency. And this lambda is a Wavelength. number. Wavelength. वेवलेंथ। और लास्ट सेशन में थोड़ा रिवाइज करवाया था E इक्वल्स टू एच न्यू। किसने डिराइव किया था ये? Blank. याद आ रहा कि नहीं? Yes, sir. अभी फ्रॉम हियर, ओए ऊपर वाला फॉर्मूला, न्यू की वैल्यू कैन आई राइट c बाय लैम्बडा? हाँ Yes, sir. क्या? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ये न्यू की वैल्यू आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर। बराबर? Substituting new value, that is yes or no? Everyone? Yes, sir. Okay. और Yes, ये sir. वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू इधर रख रहा हूं मैं। लोअर शेल का नंबर का स्क्वायर माइनस हायर शेल नंबर शेल का स्क्वायर। अब टिल नाउ इट्स क्लियर, यस और नो? क्या हुआ जरा वापस बताइए अब्दुल्ला जी। हाँ, नहीं समझा? सर वो एच हाँ, एच क्या है? बाकी सब समझ गया, खाली एच क्या था वो नहीं समझा। एच देखो थोड़ी देर पहले ही अमय ने पूछा था इधर, क्या एच क्या है? एच को क्यों बार बार भूल जाते हैं? एच इज नथिंग बट अ, देखो बेटा, Planck's constant. प्लैंक्स कांस्टेंट। बराबर ना? याद आई ओके बेटा सर। अब्दुल्ला बात? वेरी गुड। सो अभी जरा एक्सप्लेन कीजिए इसको बेटा। सबसे पहले हमने c इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा पढ़ा था, राइट? यस सर। उसमें क्या पढ़ा था? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फिर उसको म्यू को c अपॉन लैम्बडा कर दिया। म्यू को c अपॉन लैम्बडा कर दिया, ग्रेट। फिर फिर बाद में c बाय लैम्बडा को e इक्वल्स टू एच न्यू वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया। फिर e की और अभी वैल्यू एच सी अपॉन लैम्बडा है। हाँ, वेर एच इज एच इज प्लैंक्स प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट, c is velocity of light, this is wavelength of light, wavelength of electrons. अंडरस्टूड। तो एनर्जी की वैल्यू अपन को मिल सकती है। सो ये जो चेंज ऑफ ई मतलब एक एनर्जी की वैल्यू बनेगी ना इधर, डेल्टा ई, मतलब ये जो इधर, ये देखो क्या इधर एनर्जी की वैल्यू बनी 3, बराबर कि नहीं? एनर्जी की वैल्यू बनी, राइट और रॉन्ग? 3 किलो जूल 5-2 करके। अब्दुल्ला जी, यस और नो? यस सर। ये एनर्जी की जो वैल्यू बनी है, वो एनर्जी की वैल्यू बनने के लिए ऑलवेज वी वांट दिस फॉर्मूला hc बाय लैम्बडा। एनर्जी की वैल्यू बनने के लिए वी रिक्वायर फॉर्मूला व्हाट? श्रुति, वंशिका, एनर्जी की वैल्यू बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? hc by lambda. hc बाय लैम्बडा। अभी व्हाट आई एम डूइंग, एकदम ध्यान से, 1 बाय लैम्बडा को इधर ही रखता हूं। देखना सब लोग, गाइस, एवरीवन, hc को नीचे जाने दिया, अपॉन में, इधर जाएगा ना अपॉन में, बाकी एज इट इज। Guys, anyone who remembers 1 by lambda equals to nu bar, am I right? 1 by lambda को क्या बोल सकता हूं मैं? Wave number, right? Wave number. Can I write here, guys? It's a 2.18 into 10 raised to minus 18 hydrogen atom. Oi, hydrogen का atomic number 1.
Planck's constant, बराबर velocity of light 3 into 10 raised to 8. बराबर है इतना. सर 6.126 है ना? हाँ हाँ ठीक है, बराबर है एवरीवन. Yes, sir. हाँ, Yes, मैं sir. क्लियर अप टिल नाउ? Yes or no? Sir. So when you calculate this whole thing, I'm just writing here. Different color से लिख रहा हूँ. Nu bar, that is 1 by lambda. And you will Sir, get, huh? your voice was breaking, sir. Okay. Now I'm just taking mic nearer to me. I hope now I'm clear. I'm clear now, guys. Yes, sir. सर See. बीच में सर हो रहा है अच्छा while एक बार explaining. एक बार रिजॉइन कीजिए ना, 2 मिनट के बाद कीजिए. सी सो इधर व्हेन यू कैलकुलेट दिस, ये जो सब नंबर्स आ रहे हैं ना भाग्यश्री, वंशिका, ये जो सब नंबर आ रहे हैं, दैट नंबर को कैलकुलेट किया गया. और ये क्या निकला नंबर? 109,677. तो ये नंबर के पीछे फॉर्मूला वाज दिस, that is 2.18 into 10 raised to minus 18 into z square upon hc. Am I right? Yes, sir. So ये फॉर्मूला डिराइव करने का काम, अमेजिंग काम उसने वो टाइम पे किया, मिस्टर नील बोर ने. क्या किया जरा अच्छे से बोल पाएंगे? कौन बोलेगा मुझे? ट्विंकल, कैन यू गो अहेड? Yes, sir. सो सबसे इधर मुझे बताइए कि व्हाट दिमाग में क्या था नील बोर के वो टाइम पे, लास्ट अमेजिंग वर्क जिसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया है. Sir, the distance between the two shells, मतलब उनको 109677 नंबर कैसे आया वो फाइंड करना था. तो उन्होंने क्या Sir, दिमाग में तो लेकर फर्स्ट चला? उन्होंने डिस्टेंस बिटवीन द टू शेल, मतलब एनर्जी कितनी लगी फर्स्ट शेल से दूसरे शेल तक जाने के लिए सर. एनर्जी डिफरेंस. तो यस सर, तो हाँ. एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द हायर शेल माइनस द एनर्जी ऑफ द लोअर शेल सर. तो सर एनर्जी का फॉर्मूला लगाया सर नील बोर ने, और सर वैसे कंक्लूड किया. एंड देन सर एक फॉर्मूला आया, फिर ये क्या था? C इक्वल्स टू, उसने क्या लिया बाद C में? is equals to न्यू इनटू लैम्बडा, mu to lambda. वेयर Yes, sir. लैम्बडा न्यू, मतलब न्यू इज नथिंग बट C बाय लैम्बडा. और Yes, उसको sir. न्यू की वैल्यू उसने E इक्वल्स टू h न्यू में लगा दी, राइट? दैट्स प्लैंक्स थियरी एंड वी Yes, गॉट हियर sir. दैट E इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा. फाइन. Yes, sir. नाउ हियर द ऑलरेडी डिराइव्ड कंक्लूजन था E एनर्जी की जगह पे उसने hc बाय लैम्बडा लिख दिया, hc को उधर जाने दिया ना. 1 बाय लैम्बडा, होप इधर इतना पता है आपको कि 1 बाय लैम्बडा इज नथिंग बट अ Wave number. वेव नंबर, न्यू बार. सो न्यू बार, दिस इज h और c की वैल्यू रखने के बाद, z की वैल्यू रखने के बाद, z, h और c की वैल्यू रखने के बाद, we come to know that here the number was the same, which is derived by the Yes, formula of Balmer. here देखो लिखा है स्टार्टिंग में 109677 मल्टीप्लाई बाय लोअर शेल नंबर का स्क्वायर माइनस हायर शेल नंबर का स्क्वायर, राइट? Yes, sir. सो हियर आई होप आई एम क्लियर. तो ये नंबर लाने के लिए क्या फॉर्मूला आया ट्विंकल? दैट इज 2.18 into 2 into 10 10 raised to minus 8 into 1 square upon 18. 2.18 into Yes, 10 sir. raised to minus 18 into 1 square upon hc. Yes, sir. ठीक है? So that's what the end of this. नील बोर ने क्या क्या अचीवमेंट किया है, दैट हर एक चीज हम लोग ने बात की है.
So guys, I hope I'm clear starting से. Let me ask to यशस्वी, थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे ना. राज, राज बेटा, are you there? यस सर बोलो. ये कंक्लूजन बोलने में हेल्प करनी थी, बट आपका बैकग्राउंड वॉइस क्यों आता है इतना? प्रथमेश, यस सर. थोड़ा सा फटाक से कंक्लूजन के बारे में. सर यहाँ पे नील बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का जो रूम जो ये रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. नहीं, सबसे पहले सर्कुलेटेड पाथ्स होता है अराउंड द न्यूक्लियस के एलिमेंट ऑफ पी क्यू तक. फिर इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना है तो absorb the energy. फिर क्या करना पड़ेगा प्रथमेश? तो यूजिंग फॉर्मूला वो डिराइव किया था. नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. नीचे से ऊपर जाना है तो, राइट? यस सर. और ऊपर से नीचे जाना है तो, और नीचे से ऊपर जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और ऊपर से नीचे आना है तो एब्जॉर्ब रिलीज करनी होगी. ग्रेट, एनर्जी रिलीज करनी होगी. ग्रेट, सुपर. अभी क्या बेटा? वेरी सिंपल. दैट इज हियर. उसने क्या फाइंड आउट किया? एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया ऑफ अ गिवन शेल. यस सर. फिर और आगे ये फॉर्मूला बरोबर याद रखना है. फिर उसने क्या फाइंड आउट किया? फिर जवाब दिया प्लैंक्स को. भाई अभी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट एनर्जी वाले शेल में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट. इलेक्ट्रॉन अपना सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट रखेगा और इलेक्ट्रॉन एक दूरी बनाए रखेगा न्यूक्लियस से. यस सर. फिर उसने फाइंड आउट किया क्या बेटा? रेडियस. फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर, राइट? यस सर. फिर उसने वो टाइम पे अमेजिंग अचीवमेंट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, जो सब लोग एमवीआर करके फाइंड आउट कर रहे थे, उसने एक नया तरीका फाइंड आउट करके दिया कि भाई व्हाई टू गो विद हार्ड. स्टे सिंपल, दैट इज डू सिंपल NH अपॉन 2 पाई, राइट? यस सर. नाउ नेक्स्ट इज बेटा व्हाट, कि भाई फाइनली उसने अमेजिंग वर्क किया. 109677 का एक फॉर्मूला बना के दे दिया. दैट इज 2.18 into 10⁻18 into z square upon hc. Clear? यस सर. Great. Everyone, please write down over there. इधर the clear है everyone? Yes, sir. Yes, sir. चल, Yes, sir. Full clear. full clear. Great. चलो मस्त, वेरी गुड. तो guys, please involve everyone. आप लोग बोलेंगे तो मुझे समझेगा कि भाई क्लियर है एवरीथिंग. चलो अभी ड्रॉबैक ऑफ गाइस, ड्रॉबैक ऑफ नील बोर. उसमें भी ड्रॉबैक, नील बोर के ड्रॉबैक ढूंढे सबने. ठीक है एवरीवन? एवरीवन बैठ रहा है दिमाग में? Yes, sir. Yes, sir. सो उसने नील बोर ने जिस रिसर्च इज एप्लीकेबल और ये सब सही है ऑन हाइड्रोजन और अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. मतलब बेटा उसने सारे एक्सपेरिमेंट ये सब कंक्लूजन किसके लिए
डिराइव किए हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, जिसमें क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये हीलियम पे ये सब अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, ये सब चीज, बट हीलियम प्लस में कर पाएंगे। क्यों? हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एंड हियर टू इलेक्ट्रॉन है। एक निकाल दोगे तो हीलियम एक ही प्लस में बचेगा। एक बचेगा। तो कहना है दैट द हीलियम प्लस इज हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। यस सर। Yes, yes. So ये सब रेडियस का फॉर्मूला, एवरीथिंग is applicable on hydrogen like species, not on helium or any other. जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च सिर्फ उसने किसके ऊपर की थी पूरी? हाइड्रोजन के ऊपर। लिथियम, लिथियम प्लस और लिथियम 2+, इसमें से हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कौन सी है? सर लिथियम 2+। हाँ, लिथियम 2+। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1। यस, 2 निकालेंगे, नाउ 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग। इसमें एक निकाला, बराबर है। सिमिलरली हियर all 3 remaining, right? Am I clear, guys? Everyone? Yes, sir. That's the drawback first of all. फिर guys, ये पता है उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन को स्टडी किया था, तो ये ऊपर के शेल से रेज आ रहे थे सब। हाँ सर। ये रेज स्पेक्ट्रोस्कोप spectroscopes gives much detailed study of this ray, but Neil Bohr haven't specified anything. मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि भाई ये रे जो ऊपर से आ रहा है ये कैसा है? ये एक सिंगल लाइन नहीं है, अंदर ऐसे ऐसे कितने क्या है गाइस, यू नो। किसी को पुराना एवरीवन हैव रिमेंबर्ड पुराना मल्टीप्लेक्स? पुराना मल्टीप्लेक्स में पता है पीछे से प्रोजेक्टर से पूरा स्क्रीन पे, हाँ देखा है मैंने, देखा है ना। तो उसमें देखो ना इतने सारे रेज होते हैं कि पूछो मत, बराबर। तो ऊपर के शेल से नीचे के शेल में इतने सारे रेज आते हैं, बट उसने तो खाली एक लाइन करके छोड़ दिया। वो कितने रेज है हर एक उसका डिटेल नहीं दिया, ऐसा कहने का मतलब है। नहीं समझा? नहीं सर। क्या एकदम सिंपल है। एक काम करो, प्रोजेक्टर अगर अपन प्रोजेक्टर टीवी पे लगाते हैं, एक चलो प्रोजेक्टर नॉर्मल स्क्रीन पे लगाते हैं एवरीवन, तो कितने सारे रेज बाहर आते हैं, राइट? यस सर। यस सर। ओके, सन में से इतने सारे रेज बाहर निकलते हैं, चलो उतने सारे तो नहीं, बट हायर शेल से लोअर शेल पे इतने सारे रेज आ रहे थे। क्या बोला मैंने? हायर शेल से लोअर शेल पे रेज आ रहे थे।
हायर शेल से लोअर शेल्स पे इतने सारे रेज आ रहे थे जो किससे दिखाई दिए हमें? स्पेक्ट्रोस्कोप से दिखाई दिए। किससे दिखाई दिया? स्पेक्ट्रोस्कोप। तो हायर शेल से लोअर शेल पे इतने सारे रेज आ रहे हैं जो हमको तो खाली एक ही लाइन करके दिखा दिया उसने, बट एक्चुअली में ह्यूज नंबर ऑफ रेज आर कमिंग ऑन इट। नहीं समझा? तो ये एक लाइन के अंदर देर आर मेनी रेज। ठीक है? Am I clear? Yes, sir. Can you please Yes, repeat? sir. सबसे पहले तो उसने क्या बोला कि ये किसके लिए, ये रिसर्च किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ जिसके अंदर Hydrogen like species. अभी उसने क्या बोला कि भाई जो 7 से अपन ने बात की थी, 7 से 6 जो एक रे निकला था 7 शेल से 6 शेल पर, वो एक सिंगल रे नहीं है। वो क्या है? बहुत सारे रेज। बहुत सारी रेज। बहुत सारे रेज है उसमें। 7 से 6 पे सिंगल रे नहीं आ रहे, बहुत सारे रेज आ रहे हैं। तो वो सब किससे दिखाई दिया? स्पेक्ट्रोस्कोप से दिखाई दिया हमें। तो वो सब के बारे में तो कुछ नहीं बताया उसने, ऐसा लिखा हमने। बराबर कि नहीं? Yes, sir. हेलो, मैं क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अभी ये जो रे आ रहे हैं, चलो 7 शेल से 4th शेल व्हाटएवर, ये नंबर ऑफ रेज, ये अगर मैंने मैग्नेट्स रखा, मैग्नेट्स, तो ये कहां पे डिफ्लेक्ट होंगे? वी डोंट नो। ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम लोग जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट सिखाता है कि ये रेस कहां पे डिफ्लेक्ट होंगे। सिमिलरली ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा इधर, तो ये कहां पे डिफ्लेक्ट होंगे? दैट इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट। ये सब हमने बाद में रिसर्च करके निकाला हुआ है, नील बोर ने कुछ नहीं बताया है। तो क्या लिखूं मैं? थर्ड ड्रॉबैक। हाँ, बोलो बोलो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का स्पेसिफाई नहीं किया था इफेक्ट ऑन द रेस। Great. So I'm just writing here Zeeman effect and Stark effect. Can anyone explain क्या बोल रहा हूं मैं? सर मैं Yeah, go ahead बेटा. Sir, Neil Bohr didn't specify that how the rays act under a magnetic or electrical field. Yes. The Sir, rays का behavior, yes, very good, in magnetic and electric field. Sir, it was researched afterwards. So, for example, sir, how this radiation particles behave, we know, but the Neil Bohr didn't specify how the rays of hydrogen behave under these fields. Great. So the magnetic field के अंदर the rays का behavior is called as Zeeman effect. Similarly, in electric field, the rays का behavior is called as Stark effect. So the Neil Bohr haven't specified anything. Fine. So guys, ठीक है, ये सब उसने specify नहीं किया, but उसके अलावा, can you see इसका achievement, the amazing achievement, right? Everyone, the Neil Bohr का amazing achievement clear है guys, everyone? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Great, chalo. So this is how Neil Bohr worked with various species.
Am I clear? Yes or no? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Okay, guys. So we will stop today, and please revise, guys. Do well in your Sunday test. कुछ भी डाउट है तो मुझे WhatsApp करो. I'll be giving फटाक से आंसर उसका. Do maximum question practice, guys. Fine. Revise properly each and everything. Revise करेंगे, दिमाग में रहेगा तो आराम से question handle कर पाएंगे, guys. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, guys. All the best. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Bye, sir. Bye. Take Bye, care. sir. Thank you, sir. Bye, beta. Take care. Bye. Bye, beta. Take care. Thank you, sir. Bye, my pleasure. Bye, take care, beta. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, beta. Bye, take care. So, हाँ बेटा, हाँ बोलिए. today you'll be there at the office. नहीं, आज नहीं हूँ मैं. Then when? क्या हुआ? So actually ये बुक कलेक्ट करने आना था तो वो टेस्ट कैसे ऑपरेट करते हैं. मेरा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हो गया, आगे का नहीं हुआ था पहले का, बट मेरा रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया. सो वो नेक्स्ट टेस्ट है तो वो मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ, बट उसको कैसे करना है, क्या करना है, उसका मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए. नहीं देखो, आप है ना, आज विनोद सर 12 बजे से रहेंगे तो मतलब आपको एक तो बुक्स उधर मिल जाएगा, तुरंत फोन करके जाएगा. और दूसरा टेस्ट का कैसे अपीयर करना है वही डाउट है ना. हाँ मतलब टेस्ट को कैसे ऑपरेट करना है, राइट. हाँ ऑपरेट तो उधर है ना, विनोद सर आपको डिटेल में पूरा समझा देंगे. विनोद सर को कॉल करके एक बार कंफर्म हाँ. कर लो फिर. हाँ बेटा, ग्रुप में ओके. नंबर है विनोद सर का. ओके सर, चलेगा. बाय. थैंक यू सर. बाय सर. टेक केयर. बाय. टेक केयर.